Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, I was reading your comments, and in one of the comments, one fellow said, "Sir, there is so much of anxiety that I have not slept for last 3 days." So, my advice is take it easy. The result will come in coming days. We are aware, and that's why I told you that I am expecting result around 22nd May plus minus 5 days. That is what most people in SBI told me when I interacted with them. So watching for the result and getting worried about the result on daily basis is not a good thing. Yes, when we are waiting for something, it definitely creates anxiety. And just to ease out your anxiety, I try to post various videos wherein I give you information, because many people were saying yesterday that sir, result will come on 16th. And I posted one video in that I very clearly mentioned that the result can come between 17th to 27th May, and it can come on 16th also, it can come on 28th also. So I have given a range in that video. Why? So that you need not unnecessarily wait for result on a particular day. Because when we have high hopes of result on a particular day, it definitely creates anxiety in our mind. And once you are assured that this result can come any day in next 5 6 days or 10 days, then you can feel relaxed, and that's why I posted that video. But despite that, many people were very eager to see the result on 16th itself. SBI is a surprising Bank of India. It never releases the result when most people are expecting it. This I have seen for last 4 5 years. Whenever we have high hope on result on a particular day, you don't see the result on that day. And the moment you are tired, the moment you are the fatigue has set in, and you stop waiting for the result, and suddenly result comes. Many people are asking whether it can come on Saturday, whether it can come on Sunday, whether it can come on Monday. No day is fixed. This we have to understand. In case of State Bank of India, no date is fixed for the result. It is unlike IBPS, where date of result is fixed, that is 1st of April for IBPS, PO, clerk and SO, and 1st January for RRBs. But since SBI is one bank specific exam, it is not a exam conducted by some board for many organizations, and that's why the result date is not fixed, because the date of notification also varies from year to year, and the exam dates are also variable, and similarly date of result is also variable. The only thing is, through various channels, we try to gather some information, we share that information so that you remain cool and calm. Don't unnecessarily build in anxiety. Yes, when we wait for result, it is bound to become affect our brain, but try to focus on studies, try to deflect your energies in other activities, because it is not in control of anyone when result will come. The different people will share the information depending upon their information system. So they are doing their job. But at the same time, having a lot of pressure that this result will come only on this date will only spoil you. That's all. Because the date can be any, it can be within a range. Some people say, why you can't tell us a specific date? There is no specific date. How someone can tell you a specific date? The specific date can only be told when there is a specific date. For SBI Junior Associate, the result can come on any date. So no specific date can be mentioned. The only thing is, we can only estimate
or gather the information and can have a range of dates during which the probability of result is high. Again, you can't be certain on those dates, okay? So don't overthink and unnecessarily spoil your sleep or your health. This is my advice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों के, क्योंकि मेरी आदत है मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो एक कमेंट से मुझे चिंता हुई, हालांकि मेरा सोचा था कि आप वीडियो इस पर ज़्यादा नहीं बनाएंगे, पर फिर भी क्योंकि आप चिंता में हो, परेशान हो, तो इस चैनल का काम ही है आपके साथ खड़े रहना। तो उसमें उसने लिखा कि सर 3-4 दिन से नींद नहीं आ रही रिज़ल्ट की वजह से। देखो, ऐसा है कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि कल आप में से कई लोगों को बहुत हाई होप थी कि 16 को रिज़ल्ट आ जाएगा। सवेरे से मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे। मेरे पास जो सूचना थी वो ये थी कि 22 मई ±5 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट आना चाहिए। मतलब मेरा एस्टिमेशन था कि 17 मई से लेकर 27 मई के बीच किसी भी दिन रिज़ल्ट आएगा। अब क्योंकि एक नई तारीख 16 मई आ गई और आप लोगों को काफ़ी आशा हो गई कि 16 मई को ही रिज़ल्ट आएगा, तो सवेरे से आप चिंतित थे और सवेरे से आपके मैसेज आ रहे थे। तो मैंने एक एडवाइजरी वीडियो आपको बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 17 से 27 मेरी उम्मीद है रिज़ल्ट आने की, 16 को भी आ सकता है, 28 को भी आ सकता है, पर एक रेंज मैंने आपको बताई थी। उस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा आप निश्चिंत से हो जाएं और बहुत ज़्यादा चिंता 16 तारीख की ना करें। अब क्योंकि 16 हर जगह लोगों के दिमाग में था, तो नेचुरल है हर आदमी रिज़ल्ट की बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, और जब वो नहीं पूरा होता तो निराशा तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एक चीज़ आप मान के चलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम 4-5 साल का ट्रेंड देखें, तो जिस दिन आप ज़्यादा उम्मीद करते हो ना कि आज जरूर आएगा रिज़ल्ट, उस दिन कभी नहीं आता। और जब सब लोग थक हार जाते हैं, परेशान होकर बैठ जाते हैं और अब सोचते हैं यार अब तो नहीं आएगा, जब आएगा आ जाएगा, तो अचानक रिज़ल्ट आ जाता है। और ये ट्रेंड कई सालों से चल रहा है। इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे ही आप सब लोग 16 तारीख को लेके इतने परेशान हो रहे हो, कहीं ये ना हो कि मतलब शाम होते होते आपको निराशा मिले। पर नेचुरल है, जब हाई होप्स हैं तो उसको एकदम पंचर भी नहीं करना चाहिए। उसमें जैसी लोगों की इच्छा हो, जैसे सब लोग सोच रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मेरा अभी भी मानना ये है कि रोज़ रोज़ हमें रिज़ल्ट की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। जो एक एक्सपेक्टेड रेंज है मेरे हिसाब से 17 मई से 27 मई के बीच रिज़ल्ट आने की, मतलब एक रेंज बातचीत से पता लगी है, जो मैंने काफ़ी लोगों से बात की है स्टेट बैंक के अंदर। डेट किसी को भी नहीं पता है। कई लोग आप में से कहते हैं कि सर आप एक सटीक डेट क्यों नहीं बताते। सटीक डेट होती ही नहीं है स्टेट बैंक के अंदर, इसलिए ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। अगर आप सोचो कि किसी को पता है कि इस दिन रिज़ल्ट आएगा और उसी दिन आ जाएगा, ऐसा स्टेट बैंक कभी होने ही नहीं देता। जब भी आप ज़्यादा होप करते हैं किसी डेट के अंदर, वो उस डेट पे नहीं आता, आगे पीछे जब मर्जी आ जाए। ये मैं कई सालों से देख रहा हूँ, ठीक है। मतलब इतनी वहाँ सीक्रेसी मेंटेन होती है एचआरडी के अंदर कि वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, कोई नहीं आपको ये लीक कर सकता न्यूज़ के इस दिन रिज़ल्ट आने वाला है। इसलिए एक अंदाज़ा लोग लगाते हैं, जो जिस तरह की मूवमेंट्स चल रही होती हैं, जो ब्रांचेस के अंदर स्टाफ ट्रांसफ़र हो रही होती है, या उनको एश्योरेंस की जाती है कि अब तक रिप्लेसमेंट आ जाएगी, जो हल्के फुल्के ट्रिगर्स होते हैं, उनसे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसकी ज़्यादा चिंता ना करें, ठीक है। और मैंने इसीलिए कल वो वीडियो आपको बना के रेंज दे दी थी, ताकि आप निश्चिंत होकर आराम से इसकी इंतज़ार कर सकें, ना कि एक ही दिन के अंदर रिज़ल्ट आएगा उसको लेके परेशान हो जाए। पर ठीक है, होता है, जिस मनोस्थिति से आप गुजर रहे हो सबके साथ होता है। जिस चीज़ की हमें इंतज़ार होती है उससे आशा भी होती है, निराशा भी होती है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको रोकना इतना आसान नहीं होता। कहना आसान होता है कि ऐसा मत करो, मुझे भी पता है, मगर फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि जितना हम अपनी एनर्जीज़ को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं करें। जितनी हम सोच कम करके
अपने मन को शांत कर सकते हैं, करें। मुश्किल है, सबको पता है मुश्किल है, मुझे भी पता है, मगर मैं जो इस तरह की स्थिति से जब भी गुजरता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने को बिजी कर लेता हूँ किसी और चीज़ में। कल भी आपने देखा होगा, जब सब लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, हम कुछ अन्य विषयों का भी चर्चा कर रहे थे, ताकि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो आपके मन के अंदर। हर समय एक ही चीज़ सोचते सोचते रहने से भी दिमाग परेशान हो जाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।